Welcome to Dental Thesis, and do like, share, and subscribe to my channel. So basically, till now, our first chapter is covered, and this is the part one of our next chapter and next topic, cyst of the orofacial region. Okay, so basically, first of all, we will understand that what is cyst. So cyst is defined as basically cyst is what? It is a pathological cavity. Okay, it is a pathological cavity which is having fluid, semi-fluid, or gaseous contents, and which is not created by accumulation of pus and lined by epithelium and surrounded by connective tissue capsule. Like what it is saying, like see, this is your uh, as you can see, this is your cyst wall, this hollow circle, ठीक है, this bigger वाला hollow circle, जो कि आपका connective tissue capsule भी है, ठीक है. In middle of the in this middle, ये जो smaller circle है, this is your lumen of the cyst, and this lining is known as the epithelial lining. So basically, it is just your a pathological cavity which is having your three parts. Okay, one is your cyst wall, that is a connective tissue capsule. Then second part is your epithelial lining, and in the middle there is your lumen of your cyst. Okay, so now we come to its classification. So how the cyst can be classified into various categories. So basically, firstly, we have cyst of the jaws, and we have cyst associated with the maxillary antrum. Then we have cyst of the soft tissues of mouth, face, and neck. Okay, so we can put the cyst in three categories. Okay, now we come to the cyst of the jaws. So cyst of the jaws, basically they are of two types. One is your epithelial and second one is your non-epithelial. ठीक है? And so basically means जिनकी epithelial lining है, these are coming in your epithelial category, and which do not have a epithelial lining, that is your non-epithelial cyst, जिनको हम pseudocyst भी कहते हैं. Okay. Now we come on epithelial. So again, it can be classified into two types: developmental and your inflammatory type. Okay, so basically developmental again are of two further types: odontogenic and your non-odontogenic. Okay, so you just have to remember the names of the cyst in each category. Like as in for odontogenic developmental epithelial cyst, we have a mnemonic, that is your doctor. Is it okay if a glandular gingival eruption later calcified into teeth? ठीक है. How? Like see, you can see odontogenic keratocyst का O and K. ठीक है. Okay. Then your glandular odontogenic cyst, gingival cyst of infants, gingival cyst of adults, eruption cyst, lateral periodontal cyst, calcifying odontogenic cyst, dentigerous cyst. So इसी के थ्रू ये न्यूमोनिक आया है कि डॉक्टर, is it okay if a glandular gingival eruption later calcified into teeth? You all know कि dent means teeth, right? Then in non-odontogenic comes nasopalatine duct cyst, nasolabial cyst, globulomaxillary cyst, and your median mandibular cyst. And your inflammatory type, we have radicular cyst, which can be which is of further two types: apical radicular cyst and a lateral radicular cyst. Then we have residual cyst. Then we have paradental cyst. Okay. In non-epithelial, we have two examples. One is your solitary bone cyst and other one is your aneurysmal bone cyst. So this was all about the cyst of the jaws.
ठीक है। एंड विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, जो कि एग्जाम में सिस्ट पे क्वेश्चन आएगा, उसके साथ में दिस क्लासिफिकेशन विल कम एवरी टाइम। ठीक है, सो ये तो बाय हार्ट लर्न हो जाने चाहिए। Then we come to cyst associated with maxillary antrum. Here we can have two examples. One is your benign mucosal cyst of maxillary antrum, and one is your post-operative maxillary cyst. Okay. And in your third, in the cyst of the soft tissues of the mouth, face, and neck. So you can learn dermoid and epidermoid cyst, lymphoepithelial cyst, thyroglossal duct cyst, cystic hygroma, thymic cyst. Then we have the cyst of salivary glands, right? Mucus extravasation cyst, mucus retention cyst, ranula, and we have nasopharyngeal cyst. So this was the classification, complete classification of the cyst, covering the various parts of the orofacial region. So this was okay, right? Now basically we now there are many cysts, as we अभी हमने देखा इतनी सारी cysts थी, सारी cysts तो हर किसी को याद रह नहीं सकती. So basically the important cysts जिनके बारे में एटलीस्ट चीजें रिमेम्बर होनी चाहिए, पता होना चाहिए, लर्नड होनी चाहिए, जो हम पढ़ेंगे वो है हमारी डेंटिजरस सिस्ट, odontogenic keratocyst, radicular cyst, calcifying odontogenic cyst. Then we have mucocele, right? Ranula, aneurysmal bone cyst, dermoid cyst, epidermoid cyst, lymphoepithelial cyst, eruption cyst, globulomaxillary cyst, and your lateral periodontal cyst. So this is the list of the cysts जिनके बारे में you should be एबल टू आंसर, और इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिनमें से एक ना एक सिस्ट हमेशा पेपर में आती ही आती है, दैट इज योर डेंटिजरस सिस्ट, ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट, रेडिकुलर सिस्ट, calcifying odontogenic cyst, your mucocele, and your ranula, and sometimes your aneurysmal bone cyst. ठीक है, इनके बारे में तो बिल्कुल अच्छे से शॉर्ट नोट रेडी होना चाहिए. ओके, सो अब हम एक एक करके आगे सिस्ट को डिटेल में पढ़ते. हमें सिर्फ इन्हीं लिस्ट आउट सिस्ट को लर्न करना है, समझना है. ठीक है, ओके. सो फर्स्टली हम आ जाते हैं डेंटेजिरस सिस्ट पे, राइट. सो बेसिकली डेंटेजिरस सिस्ट को हम फॉलिकुलर सिस्ट भी कहते हैं और इसको हम पेरिकोरोनल सिस्ट भी कहते हैं. ओके, सो दीज टू आर द अदर नेम्स ऑफ योर डेंटेजिरस सिस्ट. So basically this is was your odontogenic cyst, right? और odontogenic cyst की मतलब basically odontogenic developmental epithelial cyst, right? इन्हीं कैटेगरीज में आ रही थी. So basically ये cyst है जो कि crown of the impacted tooth को सराउंड करती है. Impacted tooth हम सबने पढ़ा कौन सा होता है, which is not able to erupt in your oral cavity. ठीक है, which is your unerupted tooth basically. So जो impacted tooth होते हैं उनके crown को सराउंड करती है ये cyst. Okay, now we come on to its pathogenesis. तो बेसिकली इसके पैथोजेनेसिस पे दो थ्योरीज है. वन इज योर इंट्राफॉलिकुलर थ्योरी एंड सेकेंड वन इज योर एक्स्ट्राफॉलिकुलर थ्योरी. ओके, अब व्हाट आर दीज? इंट्राफॉलिकुलर थ्योरी क्या है? So basically, it is caused by fluid accumulation between reduced enamel epithelium and enamel surface, which result in a cyst in which crown is located within the lumen. What is this? Basically, क्या है कि आपका जो reduced enamel epithelium है और जो आपका enamel surface है, इन दोनों के बीच में fluid accumulation हो जाता है. ठीक है, एंड क्राउन एक तरीके से आपका ल्यूमिन के अंदर लोकेट हो जाता है. दैट सिस्ट का जो ल्यूमिन होता है, सिस्टिक ल्यूमिन के अंदर आपका बेसिकली क्राउन के अराउंड ये सारा हमारा
सिस डेवलप हो रही है, राइट, इम्पैक्टेड टूथ के क्राउन के सराउंडिंग, तो जो रिड्यूस्ड इनामल एपिथेलियम है और जो इनामल सरफेस है उसके बीच में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी सिस्ट फॉर्म हो रही है और क्राउन आपका, क्राउन ऑफ द टूथ आपका विद इन द ल्यूमेन लोकेटेड है। गॉट इट? देन उसके बाद हम आते हैं एक्स्ट्रा फॉलिकुलर थ्योरी। ये क्या कहती है कि आपका बेसिकली जो डेंटल फॉलिकल है, ठीक है, डेंटल फॉलिकल के आउटसाइड जो आपकी कनेक्टिव टिश्यू वॉल है, ठीक है, बेसिकली डेंटल फॉलिकल कनेक्टिव टिश्यू वॉल जो है डेंटल फॉलिकल का, उसके आउटसाइड जो आपकी एपिथेलियल लाइनिंग है, राइट, उसमें सिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उसका प्रोलिफरेशन हो रहा है और वो आपकी सिस्ट को फॉर्म करवा रही है। दैट विल बी अ सिस्टिक एपिथेलियम, ठीक है, लाइनिंग एपिथेलियम ऑफ अ सिस्ट। So basically extra follicular theory क्या आती है कि it may arise by the proliferation and the cystic transformation of the islands by the odontogenic epithelium, ठीक है, odontogenic epithelium जो थी dental follicle के around, उसकी वो जो lining epithelium है उसका cystic proliferation and all cystic transformation हुआ है। Got it? Around your वही, around your tooth crown, ठीक है। Now we come on to its clinical features. So basically it is usually found in your children and most lesions ये second and third decades में होते हैं and इनमें male predilection होता है। मोस्ट कॉमन साइट्स होती है इसकी मैंडिबुलर और मैक्सिलरी थर्ड मोलर। ऑब्वियसली बात है ये इम्पैक्टेड टूथ के क्राउन, नेक ऑफ द क्राउन को सराउंड करता है बेसिकली। तो ये आपका इम्पैक्टेड टूथ कौन से होते हैं? मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी थर्ड मोलर्स मोस्ट कॉमनली। तो आपकी ये जो सिस्ट है ये उसी लोकेशन पे होगी, है ना। एंड योर मैक्सिलरी कस्पिड एरियाज, क्योंकि यही आपके मोस्ट कॉमनली इम्पैक्टेड टूथ है, राइट, as you can see in this picture, ठीक है, ये यहाँ पे लोकेटेड है सिस्ट, राइट। And basically in this there is extreme displacement of your teeth, severe root resorption and the pain associated with it, ठीक है। Okay, so now इसके हिस्टोलॉजिकल फीचर्स। सो हिस्टोलॉजिकल फीचर्स के लिए सबसे सिंपल फंडा होता है कि सबसे पहले उसके डायग्राम को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करके अगर एक बारी दिमाग में बैठ जाए देन बहुत इजीली बिल्कुल हिस्टोलॉजी के सारे पॉइंट्स अपने आप याद आ जाते हैं। लाइक यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, सी ये जो खाली पोर्शन है दिस इज योर सिस्टिक ल्यूमेन ऑफ योर कैविटी, ओके, सिस्ट, ठीक है, दिस इज योर सिस्टिक ल्यूमेन। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये तीन पार्ट्स बता रहे हैं हम सिस्ट के पहले। ये हमारा सिस्टिक ल्यूमेन है, ये हमारा इसकी एपिथेलियल लाइनिंग है और ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू वॉल है सिस्टिक, ठीक है, सिस्ट की। सो दिस इज सिस्टिक ल्यूमेन जो कि आपका वाटरी फ्लूइड से भरा हुआ होता है, ठीक है। देन उसके बाद हम ये लाइनिंग एपिथेलियम, ये बिल्कुल रिजेंबल करती है रिड्यूस्ड इनामल एपिथेलियम, ठीक है। एज हमने इंट्राफॉलिकुलर थ्योरी में भी पढ़ा था ना अभी कि रिड्यूस्ड इनामल एपिथेलियम और इनामल सरफेस ऑफ द क्राउन उसके बीच में ये सब फ्लूइड एक्यूमुलेट वगैरह हो रहा है। सो दिस इज योर लाइनिंग एपिथेलियम जो कि आपकी रिजेंबल कर रही है रिड्यूस्ड इनामल एपिथेलियम को, ठीक है। एंड ये यहाँ पे आपको कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल के अंदर आपको ओडोंटोजेनिक एपिथेलियल आइलैंड्स दिख रहे हैं, राइट। सो इट वाज अ वेरी इजी डायग्राम। अब सी, so basically epithelial lining it consists of your 2 to 4 layers of flattened, आपको बिल्कुल नॉन केराटिनाइजिंग सेल्स दिख रहे हैं, है ना। एंड जो एपिथेलियम और जो कनेक्टिव टिश्यू इंटरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट है यहाँ पे, है ना, कोई यहाँ पे रेटेड एजेस नहीं है। देन उसके बाद ये यूजुअली कंपोज्ड है आपका ये थिन कनेक्टिव टिश्यू वॉल है ना, यहाँ पे आपको विद अ थिन लेयर ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल, है ना, जो कि आपके सिस्टिक ल्यूमेन को लाइन कर रहा है। रेटेपेक्स फॉर्मेशन है नहीं, ठीक है। बस अगर कोई सेकेंडरीली इन्फेक्टेड सिस्ट हो जाता है तो उसके बाद वहां पे रेटे फॉर्मेशन डेवलप कर जाती है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू आपका क्वाइट थिकेंड है एंड उसके अंदर आपको
बहुत ही लूज फिब्रिनस कनेक्टिव टिश्यू कॉम्पोजिशन है ये, ठीक है। और इन्फ्लेमेटरी सेल्स कॉमनली इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू को, ठीक है। एंड इसके अंदर रस्टिन बॉडीज है विद इन योर लाइनिंग एपिथेलियम, समटाइम्स यू कैन सी रस्टिन बॉडीज विद इन द लाइनिंग एपिथेलियम, ठीक है, जो कि आपकी हाइलैंड बॉडीज है। और सिस्टिक ल्यूमेन के कंटेंट जो होता है वो यूजुअली एकदम थिन वाटरी येलो फ्लूइड होता है, राइट। यहाँ पे क्या होता है, थिन वाटरी येलो फ्लूइड एंड समटाइम्स इट कैन बी ब्लड टिंज्ड। इजी। हिस्टोलॉजी बहुत इजी है अगर डायग्राम अंडरस्टैंडिंग है। ओके, नाउ वी कम ऑन टू रेडियोलॉजिकल फीचर्स। सो बेसिकली इन दिस देयर इज द प्रेजेंस ऑफ वेल डिफाइंड रेडियोलुसेंसी। लाइक यहाँ पे देखो इस डायग्राम में ये जो इम्पैक्टेड टूथ है इसके नेक ऑफ द क्राउन के अराउंड आपको दिख रहा है, एंड दिस इज बेसिकली योर लेटरल टाइप, है ना। दिस इज सो इजी, ये वाला। तो देयर इज द प्रेजेंस ऑफ वेल डिफाइंड रेडियोलिसेंसी विच इज हैविंग योर हाइपर ऑस्टोटिक बॉर्डर्स, ठीक है। एंड अनइरप्टेड टूथ आपको दिखता है रेडियोलिसेंसी के अराउंड, राइट। सिस्ट आपकी यूनिलॉक्यूलर होती है, एट टाइम्स इट कैन बी और मल्टीलॉक्यूलर, right? Then the bony margins of the cyst, they are well defined as less sharp, and अगर secondary infection persist करता है तो bony margins फिर उसके बाद ill defined हो जाती है। Your resorption of the root of the adjacent teeth can also be seen, and your floor of the maxillary sinus gets displaced with the expansion of the cyst. Basically क्या है ना, जैसे थोड़े बहुत जो जो मतलब कि इसका कोई एक पर्टिकुलर, जैसे कि आप आगे पढ़ के देखोगे कि आपको कुछ कुछ कई कई ट्यूमर्स के साथ या सिस्ट के साथ आपको पर्टिकुलर रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस के नाम दिखते हैं, या फिर हिस्टोलॉजिकली उनके अपीयरेंसेस के कुछ नाम होते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो ठीक है, और नहीं तो फिर मोस्टली रेडियोलॉजिकल फीचर्स काफी हद तक एक दूसरे से सबके सिमिलर टाइप होते हैं, जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस, ठीक है। तो यही चीजें इसी तरीके से आपको हर सिस्ट के रेडियोलॉजिकल फीचर्स को डिस्क्राइब करना है कि वहाँ पे आपको रेडियोल्यूसेंट रेडियो पे कैसा दिख रहा है, उसकी बॉर्डर्स कैसी है, यूनिलॉक्यूलर है, मल्टीलॉक्यूलर है, बस यही 2-3 पॉइंट्स अच्छे से बता देने होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली डेंटेजरस सिस्ट के अंदर अब 3 रेडियोलॉजिकल वेरिएशंस भी है। वन इज योर सेंट्रल टाइप, सेकेंड वन इज योर लेटरल टाइप, एंड थर्ड वन इज योर सर्कमफेरेंशियल टाइप। तो ये आपको ये इसके 3 रेडियोलॉजिकल टाइप्स है डेंटेजरस सिस्ट के, जो कि बहुत इजीली आपको समझ आ रहे हैं। सेंट्रल टाइप, जहाँ पे आपका ऐसे बल्क में सेंट्रल पोर्शन जो है क्राउन का ऊपर की साइड का ये कवर होगा। लेटरल टाइप में जहाँ पे आपका एक साइड थोड़ा वो ज्यादा लेटरली वो इन्वेट करेगा, और सर्कमफेरेंशियल जहाँ पे इक्वल प्रोपोर्शंस में ऑल 3 साइड से वो कवर अप करेगा आपके क्राउन ऑफ द इम्पैक्टेड टूथ को। एज यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये वाली साइड बहुत ज्यादा ही कवर हो रही है। सो बेसिकली दिस इज अ वन टाइप ऑफ योर लेटरल टाइप, राइट। Now come on to its malignant potential. So basically malignantly dentagerous cyst आपका आगे जाके ट्रांसफॉर्म हो सकता है, या आगे जाके इसी की ओडोंटोजेनिक एपिथेलियल जो लाइनिंग है जिसका अभी सिस्टिक प्रोलिफरेशन से सिस्ट डेवलप किया है, उसके बाद उसी एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द सिस्ट से आगे मेलिग्नेंटली ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है इनटू योर अमीलोब्लास्टोमा, योर एपिडर्मोइड कार्सिनोमा एंड योर mucoepidermoid carcinoma, ठीक है। So these 3 are your malignant potentials of your dentagerous cyst, and treatment is we just have to do the surgical excision of the cyst, okay। So now next one ki we come on to odontogenic keratocyst, okay। So odontogenic keratocyst ये भी आपका odontogenic developmental epithelial cyst थी, right। So it is a very common cystic lesion of the jaw, है ना, जो कि आपका remnants of dental lamina से arise करती है, ठीक है।
एंड इसको हम केराटोसिस्ट क्यों कहते हैं? वाई वी से इट एज केराटोसिस्ट? बिकॉज इस सिस्ट की जो एपिथेलियम है वो इतना सारा केराटिन प्रोड्यूस करती है कि वो आपके सिस्टिक ल्यूमेन को फिल करती है। ठीक है, and it has your most aggressive course. So sometimes इसको हम benign cystic neoplasm भी कह देते हैं, right? Benign क्यों? Because it is a benign cyst, है ना? And neoplasm क्यों? Because it has a very aggressive course like that of a tumor, but it is not a tumor. So benign cystic neoplasm, okay? मतलब थोड़ा सा देन उसके बाद अब हम आ जाते हैं पैथोजेनेसिस। सो बेसिकली पैथोजेनेसिस इसकी कैसे होती है कि या तो ये वही रेमिनेंस या फिर डेंटल रेमिनेंस ऑफ द डेंटल लमाइना से ओरिजिनेट कर सकती है, और ये कभी कभी प्राइमोडियम ऑफ द डेवलपिंग टूथ जर्म से कर जाती है, और समटाइम्स फ्रॉम द बेसल सेल लेयर ऑफ द ओरल एपिथेलियम से कर जाती है। ठीक है, अच्छा, वन मोर थिंग इन दैट डेंटिजरस cyst, बेसिकली दिस वाज योर H&E representation of your dentagerous cyst, right? कि मतलब कि in your practical exam कुछ इस टाइप का आपको माइक्रोस्कोपिक पिक्चर दिखेगा डेंटिजरस सिस्ट का। ठीक है, similarly this is the picture of your odontogenic keratocyst. Now we come to its clinical features. So basically peak incidence is between second and third decades of life, and it is found more frequently in males as compared to females. Okay, in mandible, as you can see here, majority of the cyst जो होती है वो ramus third molar area में होती है, उसके बाद वो first and second molar area में, and then in your anterior mandible. ठीक है, एसिम्टोमेटिक होती है, बट वो ये सेकेंडरीली इन्फेक्शन हुआ तो पेशेंट को पेन होगा, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग होगी एंड ड्रेनेज। सो एज यू कैन सी हियर cyst is developing here, right, in the molar region. ठीक है, occasionally they experience the paresthesia of the lower lip and the teeth, and there is often one tooth missing from the dental arch, as you can see here, यहाँ पे भी एक tooth आपका missing है dental arch से, right? And expansion and the thinning of the bone may result in the pathological fracture, right? And अगर आपका maxillary cyst जो है वो उसके secondary infection होने के chances ज़्यादा होते हैं because it is close to your maxillary sinus. ठीक है, now we come on to its histological features. So basically, firstly understand the diagram, right? So again, this is basically your cystic lumen. This is your epithelial lining of the cyst, and this is your connective tissue capsule. Understand it? So again, cystic lumen जो है ये इसका आपके और केराटिन से भरा होगा, राइट? देन उसके बाद ये जो एपिथेलियल लाइनिंग है, यहाँ पे आपकी पैराकेराटिनाइज्ड एपिथेलियल लाइनिंग है, एज यू कैन सी हियर, राइट? एंड देयर इज द टोम्बस्टोन अपीयरेंस ऑफ द बेसल सेल्स. ठीक है, this. And basically in the connective tissue capsule there is one distinguishing feature, that is your this satellite cyst. ठीक है, this one is your distinguishing feature, ठीक है, of this cyst. And basically there is one separation of in the कहीं corner में देखना कि there is one separation of the lining epithelium from your connective tissue capsule. ठीक है, a little one. ओके, सो नाउ बेसिकली क्या है इसके हिस्टोलॉजिकल फीचर में? पैराकेराटिन सरफेस है ना, विच इज यूजुअली अ कॉरुगेटेड, रिपल्ड एंड रिंकल्ड. ठीक है, और यूनिफॉर्मिटी और जो थिकनेस ऑफ द एपिथेलियम है वो जनरली बिटवीन 6 to 10 सेल्स इन डेप्थ होती है. ओके, यहाँ पे आप देखोगे आपको पोलराइज्ड बेसल सेल लेयर मिलेगी. ठीक है, पैलिसेडेड पोलराइज्ड बेसल सेल लेयर जिसके पास हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई है, तो इसलिए हम इसको टोम्बस्टोन अपीयरेंस ऑफ बेसल सेल देता है ये, और वी कैन से इट एज अ पिकेट फेंस अपीयरेंस. ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमें डॉटर सेल्स और सैटेलाइट सेल्स देखने को मिलती है. ठीक है,
and rete ridges are mostly absent as you can see here, ठीक है. And lumen of the cyst जो होती है वो filled होती है आपके thin straw colored fluid से या फिर thick creamy material से, ठीक है. Okay, so now we come on to the radiological feature. So like you can see here, यहाँ पे आपको दिख रही है, right? So ये oval in the shape दिखती है हमें and it extends to your body of the mandible with mediolateral expansion. दिख रहा है ना आपको यहाँ पे mediolateral expansion, and it is very small in size or it can exceed your diameter of 5 centimeter also. Margins hyperostotic होती है, mostly unilocular होती है, ठीक है. रेडियोलुसेंसी आपको सिस्टिक पार्ट में दिखती है, और अगर आपका वहां पे केराटिन प्रोड्यूस अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा आपको हेजी अपीयरेंस दिखता है. ओके, एंड रेडियोलुसेंसी सराउंडेड होती है फिर उसके बाद थिन स्क्लेरोटिक रिम के साथ. एंड सम ऑफ द केसेस में क्या होता है कि लिंगुअल और बकल कॉर्टिकल प्लेट्स की परफोरेशन दिखती है. एंड देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ योर इंफीरियर एल्वियुलर कैनाल, दैट इज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होती है. ओके, नाउ ट्रीटमेंट क्या होता है इसका. बेसिकली योर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज योर ऑस्टेक्टोमी हियर, ठीक है, ऑफ ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट. योर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज ऑस्टेक्टोमी एंड इन्यूक्लिएशन प्रोसीजर भी अप्लाई कर सकते हो, बट इन्यूक्लिएशन प्रोसीजर से रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है. एंड बेसिकली ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट है जिसका एक तो मोस्ट एग्रेसिव कोर्स है एज हमने पढ़ा था अभी स्टार्टिंग में, और साथ ही साथ इसके बहुत ही ज़्यादा हायर रेट ऑफ रिकरेंसेस होते हैं. अब ऐसा क्यों होता है, ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट के हायर रेट ऑफ रिकरेंसेस क्यों होते हैं. सो इसके थोड़े से मल्टीपल रीजंस हैं. एंड व्हाट आर दे कि बेसिकली इन्यूक्लिएशन प्रोसीजर के वक्त क्या होता है कि जो आपके हमने किसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर पढ़ा था, सैटेलाइट सिस्ट, राइट. सो इन्यूक्लिएशन प्रोसीजर के वक्त जो आपकी सैटेलाइट सेल्स है वो रिटेन रह जाती है, जिससे सिस्ट आपकी फर्दर अराइज कर सकती है लेटर ऑन, ठीक है. और सेकेंड रीजन कैन बी कि जो आपका लाइनिंग एपिथेलियम के जो पोर्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही थिन और फ्रेजाइल से होते हैं. सो इन्यूक्लिएशन प्रोसीजर के वक्त अगर वो रिटेन रह गए तब आपका मतलब कि रिकरेंस हो सकता है. या फिर अगर आपका सिस्ट जो है वो आपको अगर आप मल्टीपल पीसेस में उसको इन्यूक्लिएट कर रहे हो तो चांसेस हाई होते हैं, बिकॉज वो ये कि रेमिनेंस ऑफ द सिस्ट रह सकते हैं, ठीक है. या फिर ये आपका राइज कर सकता है प्रोलिफरेशन ऑफ द बेसल सेल्स ऑफ ओरल म्यूकोसा से, ठीक है. इसके थ्रू भी ये दोबारा से रिकर कर जाता है और इसको बेसिकली हम बेसल सेल हमार्टियाज कहते हैं. उन जिन बेसल सेल से ओरल म्यूकोसा के जिन बेसल सेल्स के प्रोलिफरेशन से ये सिस्टराइज कर जाती है, रिकर कर जाती है, तो उनको हम बेसल सेल हमार्टियाज कहते हैं, जो कि हमें थर्ड मोलर रीजन में एंड असेंडिंग रामस ऑफ मैंडिबल में मिलते हैं, ठीक है. उसके बाद so basically these four were the reasons कि इनके हायर चांसेस के होते हैं रिकरेंसेस के. ओके, अब ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट एक सिंड्रोम से एसोसिएटेड है, दैट इज योर गोल्डन गॉड सिंड्रोम, ठीक है. एंड बेसिकली जब भी आपको ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट पे अगर शॉर्ट नोट आता है ओकेसी पे, सो इसके साथ एसोसिएटेड एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है कि ईदर डिफाइन गोल्डन गॉड सिंड्रोम, ठीक है, or which syndrome is associated with OKC. Okay. So Gorlin-Goss syndrome का other name क्या है? Basal cell Nevis bifid rib syndrome. This is somewhat larger name, but जब आप इसके फीचर्स याद कर लोगे तो ये नाम अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है. एंड सो बेसिकली अबाउट दिस सिंड्रोम हमें थोड़ा सा ही याद रखना है कि एक तो ये कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है एंड ये आपका जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ये सिंड्रोम कॉज होता है, ठीक है. एंड ये सिंड्रोम बेसिकली आपका क्लासिकल ट्रायड है, ठीक है, 3 चीज़ों का: मल्टीपल बेसल सेल कार्सिनोमास, ओकेसीज इन योर जॉज एंड योर बाइफिड रिब्स, ठीक है. तो वो ये बेसल सेल क्यों बोलते हैं, बिकॉज उसके अंदर बेसल सेल कार्सिनोमा डेवलप करता है, ठीक है, और बाइफिड रिब, राइट.
अब इसमें वेरियस एबनॉर्मैलिटीज हो सकती है। अब उन्हीं को थोड़ा सा ये एक्सप्लेन आउट कर रहा है कि क्यूटेनियस एनोमेलीज के अंदर आपका आ गया बेसल सेल कार्सिनोमा, डर्मल सिस्ट और ट्यूमर, ठीक है। डेंटल एंड ऑशियस एनोमेलीज के अंदर आ जाता है आपका ओकेसी, रिब एनोमेलीज, क्लेफ्ट लिप और पैलेट। ऑप्थेल्मोलॉजिक एबनॉर्मैलिटीज के अंदर आपका आ सकता है कंजेनाइटल ब्लाइंडनेस हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल एनोमेलीज में मेंटल रिटार्डेशन और कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलस। एंड सेक्सुअल एबनॉर्मैलिटीज में हाइपोगोनाडिज्म इन मेल्स एंड ओवेरियन ट्यूमर्स, ठीक है। सो मेन चीज याद रखनी है गॉलन गॉस सिंड्रोम की, ये जो अभी हमने ये यहाँ पे फर्स्ट 2 लाइंस पढ़ी इसके बारे में, ठीक है। क्लासिकल ट्रायड किन किन 3 चीजों का होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से आपको इसका सेकंड नेम भी याद हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज अबाउट योर ओकेसी. So now we come on to the third cyst, that is our radicular cyst. Okay, radicular cyst के other name क्या होते हैं? Apical periodontal cyst और dental root end cyst और periapical cyst. Okay, and like this ये आपको microscopically दिखता है. So this is basically your inflammatory odontogenic epithelial cyst. ठीक है, अभी तक हमने 2 डेवलपमेंटल पढ़ी थी, अब ये वाली हम इन्फ्लेमेटरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड सो बेसिकली ये जब भी कोई बैक्टीरियल इन्वेजन होता है, ठीक है, या फिर डेथ ऑफ द डेंटल पल्प होती है अगर बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से, ठीक है, तो उसके साथ जो प्रोग्रेसिव चेंजेस आते हैं दैट आर बेसिकली और रेडिकुलर सिस्ट, ठीक है। रेडिकुलर सिस्ट उनमें डेवलप करती है जिन टूथ में बैक्टीरियल इन्वेजन होता है, ओके। एंड ये मोस्ट कॉमनली आपका एपाइसिस ऑफ द टिथ पे होता है, ठीक है, रूट एपाइसिस ऑफ द टिथ, ओके। नाउ अब हम आते हैं इसकी पैथोजेनेसिस पे। तो अभी हमने पढ़ा कि बेसिकली ये किसकी वजह से डेवलप करता है, योर अगर आपका बेसिकली आपका रेडिकुलर सिस्ट हमेशा नॉन वाइटल टूथ पे डेवलप करता है, ठीक है, नॉन वाइटल टूथ के पेरियपाइकल रीजन पर। सो क्या होता है कि नॉन वाइटल टूथ के पेरियपाइकल रीजन जो है उसके अंदर जो एपिथेलियल सेल रेस्ट ऑफ मेलासिस है उनका प्रोलिफरेशन और सिस्टिक डिजेनरेशन की वजह से आपके रेडिकुलर सिस्ट डेवलप करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली डेवलप्स ड्यू टू योर प्रोलिफरेशन एंड सब्सिक्वेंट सिस्टिक डिजेनरेशन of your epithelial cell rest of molasses in periapical region of the non-vital tooth. Okay. अब ये जो इसकी पैथोजेनेसिस है, ये जो इसका डेवलपमेंटल प्रोसेस है, इसमें बेसिकली आपको 4 फेजेस दिखते हैं, ठीक है। फेज ऑफ इनिशिएशन, फेज ऑफ प्रोलिफरेशन, फेज ऑफ सिस्टिफिकेशन एंड योर फेज ऑफ एनलार्जमेंट, ठीक है। तो फेज ऑफ इनिशिएशन, अभी सबसे पहले तो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा डेंटल पल्प में, या फिर आपका कोई और इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट की वजह से नेक्रोटिक पल्पल टिश्यू हो जाएगा, ठीक है, नॉन वाइटल टूथ में। अब ये कॉज है, इसकी वजह से क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा आपका सेल रेस्ट ऑफ मेलासिस का, जो कि आप सबको पता है कहाँ पे आपको मिलते हैं, रूट एपेक्स के पास में टिथ के, ठीक है। इन सेल्स का स्टिमुलेशन हो गया। उसके बाद अब हम आते हैं फेज ऑफ प्रोलिफरेशन। अब क्या हुआ कि जो ये जो स्टिमुलेशन हुआ, ठीक है, सेल रेस्ट ऑफ मेलासिस का, अब ये बहुत ज्यादा एक्सेसिव इसका प्रोलिफरेशन होगा इन सेल्स का, बहुत ज्यादा इनका प्रोलिफरेशन होता रहेगा और ये एकदम ही लार्ज सा मास ऑफ आइलैंड बना लेंगे, ठीक है, प्रोलिफरेटिंग एपिथेलियल सेल्स का वही पेरियपाइकल रीजन के पास, ठीक है। थर्ड फेज आती है हमारी फेज ऑफ सिस्टिफिकेशन। अब क्या हुआ, इतना लार्ज बल्क प्रोड्यूस हो जाता है कि बेसिकली हम इसको थोड़ा 2 टाइप में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पेरिफेरल सेल्स और सेंट्रल सेल्स। अब जो पेरिफेरल सेल्स है उनको तो अच्छे से न्यूट्रिशनल सप्लाई वगैरह सब कुछ मिलता है, ठीक है, बट जो आपके सेंट्रली लोकेटेड सेल्स होते हैं वो डिप्राइव्ड हो जाते हैं आपके न्यूट्रिशनल सप्लाई से, ठीक है, जिसकी वजह से वो अंडरगो कर लेते हैं इस्केमिक लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस,
ठीक है। तो पेरिफेरल सेल्स आपको अच्छे से उनको सप्लाई मिल रहा है तो अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, बट सेंट्रल सेल्स जिनका सप्लाई डिप्राइव हो गया है तो वो अंडरगो कर लेते हैं इस्केमिक लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, जिसकी वजह से फाइनली एक कैविटी प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है, वही जिसके अंदर सिस्टिक ल्यूमेन होगा, उसके साइड में आपकी एपिथेलियल पेरिफेरल लाइनिंग ऑफ एपिथेलियल सेल्स होगी, राइट। थर्ड फोर्थ फेज होता है फेज ऑफ एनलार्जमेंट, कि अब फेज ऑफ सिस्टिफिकेशन में एक स्मॉल सी सिस्ट बन गई, अब वो एनलार्ज करेगी। तो एनलार्ज वो दो मैकेनिज्म से कर सकती है, ईदर तो कि अगर जो अंदर जो सिस्टिक फ्लूइड होगा उसका अगर ऑस्मोटिक टेंशन जब हाई होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो फ्लूइड है इनसाइड द ल्यूमेन वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक टेंशन बढ़ेगा और आपकी सिस्ट एक्सपैंड होगी। ठीक है, और आपका साथ ही साथ सराउंडिंग बोन रिजॉर्प्शन होगी। ठीक है, सेकेंड रीजन क्या हो सकता है एनलार्जमेंट का, कि जो एपिथेलियल सेल्स है सिस्टिक लाइनिंग के, उनके अंदर कुछ बोन रिजॉर्बिंग फैक्टर्स होते हैं लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह। ठीक है, तो वो बोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ऐसे ही सिस्ट आपकी फिर एक्सपैंड करती जाएगी सराउंड में। ठीक है, सो दिस वाज योर पैथोजेनेसिस। ठीक है, जिसके 4 फेजेस है जो समझ आने चाहिए। उसके बाद अब हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। सो बेसिकली हमें मोस्ट कॉमनली थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डिकेड ऑफ लाइफ में दिखता है। ठीक है, मोर कॉमन होता है ये मेल्स के अंदर, और मैक्सिलरी एंटीरियर्स इसमें मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इस रीजन में यहाँ पे आपको सिस्ट दिख रही है, राइट। ओके, एंड मेजोरिटी ऑफ द केसेस एसिम्प्टोमेटिक होती है। ठीक है, नॉन वाइटल टूथ के साथ ही एसोसिएटेड होती है। अगर लार्ज लीजन्स है तो उनमें बस हमें स्लो एनलार्जिंग बोनी हार्ट स्वेलिंग दिख जाती है, जॉ की, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, एंड विद एक्सपेंशन हो जाता है साथ में कॉर्टिकल प्लेट्स का, और अगर बहुत ज़्यादा बोन डिस्ट्रक्शन हो जाती है उसकी वजह से स्प्रिंगीनेस प्रोड्यूस हो जाती है जॉ बोन में। ठीक है, और अगर सिस्ट वही आपकी सेकेंडरीली इन्फेक्टेड हो गई तो आपका यहाँ पे एप्सिस फॉर्मेशन लीड कर देती है, जिसको हम सिस्ट एप्सिस कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हिस्टोलॉजिकल फीचर्स पे। ठीक है, सो बेसिकली सबसे पहले हम फिर इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये आपका सिस्टिक ल्यूमेन है, ये आपकी एपिथेलियल लाइनिंग है, और ये आपका कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल है, सिस्टिक कैप्सूल है, कनेक्टिव टिश्यू वॉल है। ठीक है, सो बेसिकली अगेन यहाँ पे आपको एपिथेलियम में लाइनिंग एपिथेलियम के अंदर आपको यहाँ पे आर्केडिंग पैटर्न शो होता है। ये जो आपको ऐसे बॉक्सेस से बने हुए दिख रहे हैं ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, जो कि आपको एपिथेलियम के अंदर ऐसे आर्केडिंग पैटर्न में शो हो रहा है। ठीक है, ये आपका यही कनेक्टिव टिश्यू ही है जो आपका ऐसे आर्किड्स के अंदर एनक्लोज्ड हुआ पड़ा है। ठीक है, ये आपका डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है इस सिस्ट का। और वही कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल के अंदर डेंस इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेशन है, और इसके अंदर बहुत सारी फाइंडिंग्स है। तो बेसिकली इसके अंदर अगर हम इसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर की बात करें हिस्टोलॉजी में, तो एक तो ये आर्केडिंग पैटर्न आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, और साथ में क्या क्या चीजें अभी हम देखते हैं जो हमें मिलती है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, वो कनेक्टिव टिश्यू फाइंडिंग्स। ठीक है, तो बेसिकली हिस्टोलॉजिकल फीचर ये लाइंड होता है हमारे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से, राइट। इसके अंदर हमें रस्टन बॉडीज देखने को मिलती है इसके एपिथेलियम में, और इसका एकदम कोलाजेनस कनेक्टिव टिश्यू वॉल होती है। ठीक है, सिस्ट की। और अब इसके अंदर हमें क्या क्या फाइंडिंग्स देखने को मिलते हैं, अबंडेंट फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट, ठीक है, और एरिथ्रोसाइट्स, मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स, हेमोरेज के एरियाज, कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट्स, and occasionally spicules of dystrophic bone. Easy. Then we come on to its radiological feature. तो as you can see here, यहाँ पे ये सिस्ट डेवलप हुई पड़ी है आपके, ये है पेरियोपाइकल रीजन में। ठीक है, नॉन वाइटल टूथ के रूट एपाइसिस के सराउंडिंग। ठीक है, सो ये बेसिकली आपकी राउंड या फिर ओवल रेडियोल्यूसेंसी शो करती है वेरिएबल साइज की, जो कि बहुत ही ज्यादा वेल डिलिनिएटेड और मोस्ट लाइकली आपकी मार्क्ड रेडियोपेक रिम के साथ होती है, मतलब रेडियोल्यूसेंसी सराउंडिंग विद द रेडियोपेक रिम। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है कि आरसीटी कर सकते हो,
ऑफ द टूथ, ठीक है, या फिर एक्सट्रैक्शन करते हो इन्वॉल्व टूथ की, या फिर वही इन्यूक्लिएशन प्रोसीजर करते हो इस पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सिस्ट, अब हम आते हैं डर्मोइड सिस्ट पे, ठीक है। सो डर्मोइड सिस्ट को बेसिकली हम सिस्टिक टेराटोमा या फिर हम इसको डर्मोइड सिस्टिक ट्यूमर भी कह सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द अदर नेम्स। सो बेसिकली आपकी डेवलपमेंटल सिस्ट है जो कि रेमिनेंस ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्किन से डिराइव कर रही है, ठीक है। तो ये अभी हम थोड़ा सिस्ट ऑफ द जॉस से बाहर आ गए, अब हम थोड़ा सा ये सिस्ट ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज पे आ गए, ठीक है। मतलब अभी खत्म नहीं हुए सिस्ट ऑफ द जॉस, पढ़ रहे हैं, ओके। एंड दिस इज बेसिकली योर हमाटोमेटस ट्यूमर जिसके अंदर मल्टीपल सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं एंड ऑलमोस्ट ऑल द स्किन अपेंडेजेस वो कवर कर लेता है, ठीक है, लाइक नेल, डेंटल कार्टिलेज, बोन लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, डर्मोइड सिस्ट। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं इसके कि ये आपका यंग चिल्ड्रन में आकर करती है, स्पेशली इन योर फर्स्ट डिकेड, ठीक है। मोस्ट कॉमनली आकर करता है फेस, नेक और स्कैल्प पे, और एडिशन टू द स्किन ये इंट्राक्रेनियल हो सकती है, इंट्रास्पाइनल हो सकती है और पेरिस्पाइनल हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल ये पेनलेस स्वेलिंग होती है डो कंसिस्टेंसी की, जैसे कि ये आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये इसको डर्मोइड सिस्ट है, ठीक है। तो ये बिल्कुल पेनलेस स्वेलिंग होती है डो कंसिस्टेंसी की। और अब एक चीज है कि अगर सिस्ट आपकी माइलोहायोइड मसल के ऊपर डेवलप कर रही है तो वो सबलिंगुअल स्वेलिंग प्रोड्यूस करती है मिड लाइन में, जैसे कि आप इस वाले पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। ये आपकी सबलिंगुअल डर्मोइड सिस्ट है। तो अगर आपकी सिस्ट माइलोहायोइड मसल के ऊपर डेवलप कर रही है तो वो सबलिंगुअल स्वेलिंग प्रेजेंट करती है, अगर वो माइलोहायोइड मसल के नीचे डेवलप कर रही है तो वो सबमेंटल या फिर सब मैंडिबुलर स्वेलिंग प्रोड्यूस करती है मिड लाइन में। इजी। उसके बाद अब हम आते हैं इसके हिस्टोलॉजिकल फीचर्स। तो बेसिकली इस सिस्ट के बारे में इतना कुछ आता नहीं है, ठीक है, पेपर में नहीं आती, पता होना चाहिए, वैसे पेपर वेपर में नहीं आती। तो डर्मोइड सिस्ट बेसिकली, तो इसलिए इसमें हिस्टोलॉजिकल फीचर्स के डायग्राम जितना जोर देने की इतनी कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली डर्मोइड सिस्ट जो होती है स्किन में वो लाइंड होती है हमारी ये ऑर्थोकेरेटनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से, जिसके अंदर वो ये आपको हेयर फॉलिकल्स, सेबेशियस ग्लैंड्स एंड इरेक्टर पिल्लाई मसल्स वगैरह मिलती है, ठीक है। कैविटी ल्यूमेन आपका फिल्ड होता है सीबम, केराटिन और हेयर शाफ्ट्स वगैरह से, और वही सिस्टर कैप्सूल आपकी कंप्रेस्ड कनेक्टिव टिश्यू से कंपोज्ड होती है। इजी। ट्रीटमेंट क्या है इसका? सर्जिकल एक्सीशन सिस्ट का, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं एपिडर्मोइड सिस्ट पे, और इसको हम क्या कह सकते हैं? एपिडर्मोइड इंक्लूजन सिस्ट और केराटिन सिस्ट और सिबेशियस सिस्ट, ठीक है, ये इसके अदर नेम्स है। अब ये किसकी वजह से अराइज करती है? सो बेसिकली ये जो आपके एपिडर्मोइड एलिमेंट्स है उनका सिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से एपिडर्मोइड सिस्ट होती है, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है कि ये मोस्ट कॉमनली थर्ड और फोर्थ डिकेड में होती है, ट्वाइस एज कॉमन इन मैन होती है, मतलब बेसिकली यहाँ पे भी मेल प्रेडिलेक्शन है, ठीक है। कॉमन साइट्स इसकी होती है फेस, ट्रंक, ठीक है, नेक एक्सट्रीमिटीज एंड योर स्कैल्प, ठीक है। लाइक ये आपका ये जो बैक पोर्शन यहाँ पे आप देख रहे हो एपिडर्मोइड सिस्ट, और तो ये बिल्कुल ही फर्म सी, राउंड, मोबाइल, फ्लैश कलर टू येलो और वाइट सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स की तरह दिखती है आपको, वेरिएबल साइजेस की, ठीक है। और कुछ कुछ पेशेंट्स में ये मेलेनिन पिगमेंट भी कंटेन करती है, तो ये थोड़ा सा डार्किश कलर शो करती है। एंड डिस्चार्ज यहाँ से हमें फाउल स्मेलिंग एकदम चीज लाइक मटेरियल डिस्चार्ज होता है इस नोड्यूल से, ठीक है। और कभी कभी ये इन्फ्लेम्ड हो जाती है, अगर ये इन्फ्लेम्ड और इन्फेक्टेड हो गई, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया तो वो ये पेन वगैरह डेवलप करेगा, ठीक है। अब अगर ये है ओरली, ये हमें एपिड्रमोइड सिस्ट ऐसे दिखती है, तो ओरली ये डिफिकल्टी प्रोड्यूस करेगी फीडिंग में, स्वेलोइंग में, बोलने में, है ना। उसके बाद इसके हिस्टोलॉजिकल फीचर्स क्या है कि बेसिकली ये जो सिस्ट होती है वो ये लाइंड होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से,
ठीक है। और ये बाकी डिस्क्वामेटेड केराटिन के साथ इसका ल्यूमेन फिल्ड होता है लैमेलर पैटर्न में, ठीक है। और डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन और रिएक्टिव फॉरेन बॉडी रिएक्शन, ये दो चीजें हमें देखने को मिलती है इसकी सिस्टिक कैप्सूल के अंदर, ठीक है। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन एंड रिएक्टिव फॉरेन बॉडी रिएक्शन, ठीक है। और वही अगर आपका पिगमेंटेड सिस्ट होगा तो उसके अंदर आपको कनेक्टिव टिश्यू वॉल के अंदर मेलेनिन पिगमेंट्स वगैरह मिलेंगे, और साथ में आपको मेलानोसाइट्स और मैक्रोफेजेस का इनफिल्ट्रेट भी दिखता है, ठीक है। एंड ट्रीटमेंट क्या है इसका? सर्जिकल एक्सीजन, राइट। ओके, सो इसके बाद हम आते हैं ब्रेंकियल क्लेफ्ट सिस्ट पे, ठीक है। या इसको हम बेनाइन सर्वाइकल लिम्फो एपिथेलियल सिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये आपकी सिस्ट होती है नेक की, ओके। सो बेसिकली इसमें क्या है कि ये कहाँ से अराइज करती है कि जो आपका क्या होता है कि एम्ब्रियोजेनेसिस के वक्त जो आपके लिम्फॉइड एग्रीगेट्स होते हैं, ओरल लिम्फॉइड एग्रीगेट्स, ठीक है, उसके अंदर जो आपकी लाइनिंग एपिथेलियम वगैरह एंट्रैप्ड हो जाती है, उनके सिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये जो लिम्फो एपिथेलियल सिस्ट है ये अराइज करती है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? लाइक हेयर यू कैन सी ये वाला जो पोर्शन है ये हो रखी है इसको लिम्फो एपिथेलियल सिस्ट, नेक रीजन में है ना। तो वो ये है कि एम्ब्रियोजेनेसिस के वक्त जो आपके ओरल लिम्फोइड एग्रीगेट्स होते हैं, जब उनके अंदर जो आपका ट्रैप्ड एपिथेलियम वगैरह है उनके सिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये डेवलप करती है। क्लिनिकल फीचर क्या है कि ये वो ये हमें सुपरफिशियली लोकेटेड होती है ये नेक में, ठीक है। एकदम क्लोज होती है, देखो ये एंगल ऑफ मैंडिबल है, इसके एकदम क्लोज है, ये क्लोज टू द एंगल ऑफ द मैंडिबल है ना, एंड एंटीरियर टू योर स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, ठीक है। और ये किसी भी एज पे हो सकती है, फर्स्ट टू 6 डिकेड्स तक, ठीक है। नेक लीजन वैरी करता है, स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। स्वेलिंग होती है जो कि प्रोग्रेसिव और इंटरमिटेंट, मतलब वो ये है कि रेगुलर हो सकती है या फिर बीच बीच में हो सकती है। और यहाँ पे पेन इसका एक फीचर होता है, ठीक है। वही सेकेंडरीली इन्फेक्शन वगैरह अगर ऐसा कुछ हुआ, वरना ये एसिम्टोमेटिक होती है, सर्कमस्क्राइब्ड मूवेबल स्वेलिंग होती है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ नेक पे, ठीक है। यूनिलेटरल भी हो सकती है और बायलेटरल भी हो सकती है। उसके बाद हम आते हैं इसके हिस्टोलॉजिकल फीचर्स। सो इसके भी बिल्कुल इजी से है कि सिस्टिक कैविटी जो होती है सबसे पहले तो वो लाइंड होती है थिन स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से, ठीक है। और सिस्ट आपकी एक लिम्फोइड टिश्यू के मास के अंदर वो पूरी सर्कमस्क्राइब्ड होती है ना, वही ओरल लिम्फोइड एग्रीगेट्स है ना उनके अंदर एंट्रैप्ड। और सिस्टिक कैप्सूल के अंदर वो ये वेरिएबल अमाउंट का कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेस, मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स, इन सब का इन्फिल्ट्रेशन होता है। और सिस्टिक ल्यूमेन आपका फिल्ड होता है या तो एकदम थिन वाटरी फ्लूइड से या फिर थिक जिलाटिनस मटेरियल से, ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या है इसका कि लोकल सर्जिकल इंसिजन से इसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट द पार्ट वन ऑफ द दिस टॉपिक, ठीक है। बाकी की सिस्ट हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंडेड टिल नाउ, ठीक है। And don't forget to like, share, and subscribe to this channel. Thank you.